राजनीतिक मुद्दा हो, है ना, और या फिर पायलट्स हो, कुछ भी, हर जगह वुमेन आगे लीड कर रही है। ठीक, तो वुमेन, अब बॉयज सोच रहे होंगे तो वुमेन जा रही है ना, हम क्या करें? तो वो वुमेन आपकी सिस्टर्स है, ठीक है, आपकी मदर है। आप जब बड़े होंगे तो हो सकता है आपकी बच्चियां भी हों, है कि नहीं? तो वुमेन्स डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हम ये प्लेज लेते हैं, है ना, ये शपथ कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चों को ये समझाया जाता है कि हमेशा हमें अपने सिस्टर्स की, अपने मदर्स की, है ना, उनकी, और जब आप बड़े हो जाएं, कहीं ऑफिस में जाएं, कहीं कुछ करें, तो आप अपने कोलीग्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, जो भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा उनकी बातों को समझेंगे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो आज के दिन आप सबको ये बात एक्सेप्ट करनी है और प्लेज लेना है कि आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, चाहे जो भी हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, टीचर्स हो। टीचर से भी बहस नहीं करते, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसे ही डांट रही है, तो उस समय थोड़ा सा शांत हो जाए, सॉरी बोल के हट जाए, चाहे जहाँ भी। मम्मी भी डांट रही है तो बहस नहीं करना, ओके। तो अभी ये बच्चियाँ कुछ बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे वुमेन हुई हैं जो क्या कर रही है। कुछ इंडियन वुमेन जो है वो विदेशों में भी कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहीं पे जज हैं, है ना। तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, पेशेंसली सुने और समझे। चलो अदिति, यू स्टार्ट। Yes. Good morning everyone, my name is Aditi. I am studying class 6 and today we are celebrating Women's Day and I am going to speak on Kamala Harris. Kamala Devi Harris is the Vice President of the United States of America. She was elected Vice President after a lifetime of public service, having been elected District Attorney of San Francisco, California, Attorney General and United States Senator. Vice President Harris was born in Oakland, California to parents who emigrated from India and Jamaica. देखिए, कमला हैरिस, उनका जो मूल स्थान है दैट इज इंडिया, इंडिया की है वो। अब वो यूएसए की क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। क्या नाम है उनका? कमला हैरिस। कमला हैरिस। Good morning all of you. My name is Riddhi Verma. I am studying class 8. Today we are celebrating Women's Day. I am going to speak on Nirmala Sitharaman. निर्मला सीतारमण। Nirmala Sitharaman, born 18 August 1959, is an Indian economist and politician serving as the current Minister of Finance and Corporate Affairs of India. She is a member of the Rajya Sabha, upper house of the Indian Parliament since 2014. Thank you. निर्मला सीतारमण है, शी इज हु? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके पहले भी कोई लेडी हुई थी क्या? हाँ, किसी को पता है? बहुत थोड़े टाइम के लिए इंदिरा गांधी ने भी ये जो आपका बजट आता है ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि इंदिरा गांधी भी बहुत थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थी। उन्होंने बजट पेश किया बहुत थोड़े टाइम के लिए, शायद उस समय कोई था नहीं, इस वजह से उन्होंने ये कार्यभार लिया। ओके, तो निर्मला सीतारमण ये क्या है हमारे देश में? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। Good morning everyone. My name is Aarti. I study in class 9. Today we are celebrating Women's Day. I am going to speak Hima Das. Hima Das born on 9 January 2000. Nicknamed Ring Express, is an Indian sprinter from the state of Assam. She holds the current Indian national record in 400 meters with a timing of 15.79 seconds that she clocked at the 2018 Asian Games in Jakarta, Indian Ocean. She is the first Indian athlete to win a gold medal in a track event. Thank you. Good morning everyone, my name is Mansi Singh. I am studying class 8. Today we are celebrating Women's Day. I am going to speak on PV Sindhu.
Kushella Venkat Sindhu was born on 5 July 1995, is an Indian badminton player. She was the first Indian world badminton champion to become the दोबारा से शुरू करती हूँ. Kushella Venkata Sindhu was born on 5 July 1995, is an Indian badminton player. She is the only first in India to become worldwide champion from India to win 2 consecutive medals at the Olympic Games. Thank you. Good morning all of you. My name is Rakesh Singh from class 9. Today we are celebrating Women's Day. I am going to speak on Avni Chaturvedi. Flight Lieutenant Avni Chaturvedi, born on 27th October 1993, is an Indian pilot from Rewa district, Madhya Pradesh. She was declared as the first woman combat pilot along with 2 of her cohort, Mona Singh Jitarwal and Bhavna Kant. Flight Lieutenant Bhavna Kant, Flight Lieutenant Avni Chaturvedi. One is the first female to be promoted to the rank of her Marshal in India as Air Force (IAF), and the other 2 are among the first 3 females fighter pilot to get inducted into the Flying Force. In 2018, she was honored with the doctorate degree from Banastali Vidyapeeth. On 9th March 2020, Chaturvedi was awarded with Nari Shakti Puraskar by President Ram Nath Kovind. Thank you. तो अभी हम लोगों ने 5 नाम देखा है ना. 5 नेम्स कौन कौन से? कमला हैरिस और निर्मला सीतारमण, पीवी सिंधु, Avni Chaturvedi. अपनी चतुर्वेदी, हिमा दास. है ना. ऐसे बहुत से अभी लेडीज बची हुई हैं जिनके नाम अभी यहाँ पे नहीं लिए गए. ठीक है, तो आप आज जा कर के देखिए भाई कि आपके देश का नाम जो है रोशन करने वाली कौन कौन सी फीमेल है. ठीक है, देखिए और उनको आप भी प्रमोट करिए. ठीक, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. कहीं वो आपको हेल्प करती हैं तो कहीं आप उन्हें हेल्प करिए. ओके, ठीक है. अभी हमारे सर हैं संजय सर, वो भी आपको कुछ सुनाएंगे. अगर आप में से कोई चाहता है यहाँ पे आके पोएम वगैरह बोलने के लिए तो बोल सकता है. आइए मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है. मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, जिस देश से निकली है बेटियां बाहर रात में, वह देश आज भी तरक्की कर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को. मैं बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आज सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा. आंदोलन की शुरुआत की. ये आंदोलन एक हड़ताल के रूप में था, जिसमें एक नौकरी के रूप में था, जिसमें महिलाओं को कम समय में अधिक मजदूरी देने के लिए और वोटिंग के लिए उन्हें मत देने का अधिकार के लिए ये आंदोलन किया गया. उसी के बाद 1 वर्ष के बाद हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. और महिलाओं के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे आज महिलाएं कितनी सुरक्षित है. मुझे गर्व है हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सभी मिनिस्टर और राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में आज भी हमारे महिलाएं उपस्थित है. इससे गर्व की बात क्या हो सकती है. आज हमारी जो महिलाएं हैं इतने उच्च पद पे हैं. लोग कहते हैं कि हाँ, महिलाएं ना होने पर शर्मनाक महसूस करते हैं. तो आज हमारी महिलाएं इतने ऊपर हैं, हम गर्व क्यों ना करें. ठीक है, तो कुछ लाइनें और बोलूंगा मैं महिलाओं के ऊपर, कुछ कविताओं के माध्यम से आपको मैं. कितना सुंदर कितना कोमल, कितना सुंदर कितना कोमल, कितना निर्मल, कल कल करती झरने जैसे तो
तो कभी गंगा जल, तो कभी गंगा जल, तू नारी तू कल, सुंदर भी थी आज भी सुंदर है, तू सुंदर सुंदर तेरा आने वाला कर हर रोज सुंदर हो। और कुछ लाइन बोलूंगा मैं। कल भी मैंने किसी से कम नहीं थे, कल भी मतलब महिला बोल रही है, कल भी आप किसी से कम नहीं थे, ठीक है, आज भी आप किसी से कम नहीं हो। ये धरना हम महिलाओं के लिए नहीं, ये धरना जो धरना रखते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उसकी आवाज़ उठाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक महिलाएं हर रोज़ सोचें अपने बारे में, या हर महिलाओं के बारे में सोचें, वो निडर होकर सोचें कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, और सारी महिलाएं उनके साथ रहें तो कुछ भी कर सकती है। बाकी जानकारी क्या दूं महिलाओं के ऊपर, आप सभी लोगों को पता होगा। आप भी एक जो यहाँ पे बालिकाएं हैं, यहीं से आपकी शुरुआत होती है एक महिला बनने की और आगे चलने की। आपकी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप एक माँ को देखिए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और वो कहाँ पे है करके, आज वो आज़ाद है कि नहीं, इसी को देख के आप अभी से सोच लोगे एक महिला होने का क्या वो है करके, उसके बाद आगे आपके साथ भी ये कठिनाइयाँ दूर होने के लिए आप मतलब आपके साथ भी ये कठिनाइयाँ आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये वाली क्लैपिंग संजय सर के लिए थी, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। मुझे भी लगा था मैं यही बोलूँगी, लेकिन सर ने बोल दिया। थैंक यू सर। अब पंकज सर आपको थोड़ी सी देखिए, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, और सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। ये कहावत जो है, या ये जो लाइन कही गई, ये कही तो पहले कही थी। उस समय क्या था कि जो महिलाएं थी वो प्रोग्रेस के जो स्टेप्स हैं उस पर चल रही थी, तब ये किसी ने लाइन कही थी। लेकिन आज ये लाइन एकदम पूरी तरीके से अडॉप्टेबल है, और ये फुल फ्लैश जो है वो पूरी तरीके से एडमिटेबल है। इनको हम लोग कह सकते हैं सही बात। आज आप देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं आज पूर्ण रूप से अपना योगदान दे रही हैं, और हम सब भी यही चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो संपूर्ण रूप से हर एक क्षेत्र में महिलाएं उसका योगदान दें। इसका कारण ये भी है कि एक महिला, एक नारी, या एक बेटी, या एक घर में काम करने वाली पत्नी, हाउसवाइफ, हमारी माँ, चीज़ों को संगठित करके, चीज़ों को सजा करके, सबको एक साथ सम्मिलित करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और जो जीवन है उस जीवन में बैलेंस रूप से, चाहे वो कम चीज़ें हों चाहे वो ज़्यादा चीज़ें हों, उसको बैलेंस करके सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो चाहे वो हमारा घर हो चाहे वो हमारा देश हो, अगर किसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत जब पड़ेगी तब नारी की आवश्यकता पड़ेगी, महिला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए महिलाएं आज चाहे सेना की बात करें, चाहे आज हम पुलिस की बात करें, चाहे आज हम मेडिकल की बात करें, चाहे आज हम शिक्षा की बात करें, चाहे आज हम वैज्ञानिक उपकरणों की बात करें, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उसमें महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा नेट पर सर्च करो, इधर सर्च करो, उधर सर्च करो, कोई मतलब ही नहीं। सामने आपके उदाहरण है हर एक चीज़ के। पहले पुलिस थाने हुआ करते थे, पुलिस चौकियाँ हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखिए पिंक बूथ बन गए हैं, पिंक बसेस चल गई हैं, ठीक है। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। पहले सेना में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, अब सेना में महिलाओं को एंट्री भी है। पहले क्या था, महाकाल के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, ठीक है, हाथी अली में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। अब आज हर जगह महिलाओं को प्रवेश मिल गया है, सम्मान मिला है। सर ने बताया कि वोट देने की अनुमति नहीं थी पहले के समय में, 90s
जब 1900 का दौर चल रहा था, 1909 1908 के दौर में महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी। महिला आज पूर्ण रूप से वोट दे रही हैं और महिलाएं भी एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है वो रेस हो रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आने वाले सभी बालिकाओं को महिलाओं दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप सभी को। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सशक्त बनिए, समृद्ध बनिए और स्वस्थ बनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चल गया सशक्त बनिए, लेकिन कैसे बनेंगे? हाँ, अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को बढ़ा करके स्वस्थ बनिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और समृद्ध बनिए। जब आप ये दो चीजें कर लेंगे तो समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ से। ओके, ठीक है, थैंक यू।